আর মমতা ব্যানার্জি করতে পারে না। একটা আমরা বলতে পারি, আজকে আমাদের প্রার্থী, আজকে আমাদের প্রার্থী বিজেপি তৃণমূলকে হটিয়ে আমাদের সাংসদে যাবে কে? আমাদের আলী ইমরান ঠিক করে যাবে। এখন মমতা ব্যানার্জি এরা সিসিএ বলে বেড়াচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছে, অমিত শাহ বলছে এরা সিসিএ রুখবে কে? জাতীয় কংগ্রেস বামফ্রন্ট আবার কে? আজকে আপনারা ভাববেন না 5 বছর আগে সিসিএ পাশ হয়েছিল পার্লামেন্টে, তখন মমতা ব্যানার্জির দলের ভূমিকা ছিল কি? ওই 22টা এমপি কিন্তু গোপনে বিজেপির সঙ্গে বোঝাপড়া করে ভোটিং এর সময় লোকসভা থেকে আউট হয়ে গেছিলেন, আর কংগ্রেস সহ বামপন্থ অন্যান্য দল বিরোধিতা করছিলেন, ভোটে অংশগ্রহণ করছিলেন। কিন্তু মমতা ব্যানার্জির 22 জন এমপি আজকে লোকসভা থেকে বেরিয়ে যায় আর বাইরে বলে আমি রুখবো, এরাসি রুখবো, এবং বিজেপি বলছে আমি এরাসি করবো। তাই আজকের মন্ত্রীবল আবার 5 বছর বাদে আবার বলছে এরাসি 5 বছর আগে করতে পারেনি, এবারও পারবে না। রুখবে কে? কংগ্রেস বামফ্রন্ট রুখবে। আর আমরা ইন্ডিয়াতে ক্ষমতা আসলে পার্লামেন্টে আমরা এনআরসি আইন বাতিল বই করবো নিশ্চিতভাবে। চিন্তা করবো না। বলুন আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না, অনেক বক্তা আছে, তারপর যার বক্তব্য শোনার জন্য আপনার বসে আছে অধীর আগ্রহে উনি বলবেন। আর তাই আমরা বক্তব্য শেষ করে আমি এখন বলছি হাফিজ আলী সালেহী, প্রাক্তন মন্ত্রী, বামফ্রন্ট সরকারের আমাদের রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের সহসভাপতি হাফিজ আলী সালেহী, হাফিজ আলী সালেহীকে আসার জন্য পৌঁছিয়ে আসার জন্য দেওয়ার জন্য আজকের মাননীয় সভাপতি এবং প্রধান অতিথি ইমরান প্রতাপগিরি এবং অন্যান্য বাম এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব অল্প 5টার মধ্যে আমাদেরকে সভা শেষ করতে হবে। সেই জন্য আমি বিশেষ কিছু বলবো না, একটাই কথা বলতে চাই, যদি গোয়ালপোখার এবং চাকুলিয়ার মানুষের সম্মান থাকে তাহলে এই মাঠে দাঁড়িয়ে মমতা ব্যানার্জির কিভাবে হিম্মত হলো যে 3 বারের বিধায়ক আলী ইমরান খানকে উনি ছোকরা বললেন। সেই জন্য গোয়ালপোখর এবং চাকুলিয়ার মানুষকে বলছি যে আপনাদের মধ্যে যদি একটুকু বিবেক থাকে, সম্মান থাকে, তাহলে তৃণমূলের নামে ভোট হারাম করে দিন। চাকুলিয়া এবং গোয়ালপোখর থেকে না পায়। সকলকে আমার পক্ষ থেকে সালাম এবং নমস্কার জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, জয় হিন্দ। বন্ধুগণ, এখন বক্তব্য রাখবেন সিপিএম এর উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সম্পাদক আনাউল হক সাহেব। আনাউল হক সাহেবকে বলার জন্য মহাজিজ, আজকের সভার সভাপতি, উপস্থিত আমার কংগ্রেস এবং বামফ্রন্টের যে নেতৃবৃন্দ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা উপস্থিত হয়েছেন সভাকে, বাম এবং কংগ্রেস জোটের পক্ষ থেকে তোমার সভাকে আদাব সালাম নমস্কার জানায় না। আমার সূর্যাবলী ভাষার 2-4টি বাদকালী কর্ম पार्थे जी हमरा जब मुसीबत थी वैसे ही हमार मुलुकटा होते जे बड़ा मुसीबत पड़े गए। बहुत ज्यादा मुश्किल हमार देशटार जे इंसानियत, हमार देशटार जे कौमियत, हमार देशटार जे इत्तेहाद, हमार देशटार जे इत्तेफाक है, हमार देशेर अंदर जे परंपरा थी सरकार दिल्ली जे सरकारটা কায়েম है बीजेपी आरएसएस द्वारा जे परिचालित जे सरकार
वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के कौमियत, हिंदुस्तान के एकताई, हिंदुस्तान के जमुरी, हिंदुस्तान के अंदर परंपरा है इरा ध्वंस করে দেওয়া হবে আর নয়া করে ওরা আমার দেশের দস্তুর या संविधान बनवाते हैं एक आलादा रास्ता एक निये है ওয়ার खिलाफ पूरा हिंदुस्तान बीजेपी एवं बंगाल আমার তৃণমূলের खिलाफ গায়ে দিয়েছেন সমস্ত তাকত সমস্ত শক্তি সমস্ত রাজনৈতিক দল আমরা এক জগৎ একত্রিত হয়ে এবার বাংলাদেশ আমরা লড়াই করছি एक बेटी হচ্ছে যে তৃণমূল છે एक बेटी बीजेपी છે আর বাকি সমস্ত বামপন্থী এবং কংগ্রেস আমরা একসাথ মিলে হেনে দেশের কৌমিয়ত রক্ষা করার জন্য এই লড়াই করছি 5 নম্বর সিটত আমার কংগ্রেসের প্রার্থী আলী ইমরান রাম ভিক্টর তোমার ঘরের ছোঁয়া এই এলাকা তোকে চিনি আমরা আলী ইমরান রাম নাম কম জানি लेकिन ভিক্টরের নাম দেওয়াতে গোটা জেলার 7টা বিধানসভা আমরা এলান করে বেড়াই অনেক কাজের মুখ হচ্ছে যে ভিক্টর ভোট দেওয়া হবে ভিক্টর ভোট দেওয়া হবে हाथ निशानों भोट देवा হবে ईद आवाज है और यार वजह से वरानमत घबराहट परेशानी पैदा हुए ममता बनर्जी खाली पारे वाले करम दिखे उसको आ जाए चाकुलिया उसको आ जाए रायगंज उसको आ जाए बोलने को घूरे बनाते हैं परसों दिन हाई कोर्ट यार चुरी जो चुरीलार बात तो सुबह जानिए আমরা 100 দিনের টাকা আমার ইন্দিরা আবাসের ঘরের টাকা খাইলাই গিয়ে ওরা তো আমার নজরের সামনে আর একটা পরশুদিন হাইকোর্ট পাওয়া যায় 25,000 মাস্টারের চাকরিলা কি চুরি করে হেনে অন্যায় ভাবে তুই চাকরিলা দিয়ে ওয়ার পর সমস্ত বাতিল করে দিয়ে এরপর হরৌরিয়া বদল করে হরৌরিয়া বদল इसलिए इधर लड़ाई तो हम देश तक बचाते हैं 26 साल फिर तुम्हारे पास मुलाकात बात होगी वह बात होते तृणमूल जोर से उठाने फेंके देवा হবে ইরা এলান আবেদন রাখে আমার এই লোকসভা 5 কংগ্রেসের প্রার্থী বামফ্রন্ট সমর্থিত কংগ্রেসের প্রার্থী ভিক্টর यानी আলী ইমরান রাম 1 নম্বর নিশাবুরামরা টিপে নে हाथ चिन्ह তোমরা ভোট দেন কামিয়াব করবেন এইটা উম্মিদ আশা ভরসা রাখেন তোমার সবাইকে সালাম আদাব জানাই শেষ করছি ইনকলাব জিন্দাবাদ বামফ্রন্ট কংগ্রেস জোট জিন্দাবাদ এখন বক্তব্য রাখবেন বিভূতিভূষণ দাস সংগঠনের সদস্য উত্তরবঙ্গ জেলা কংগ্রেস কমিটি বিভূতিভূষণ দাস বন্ধুগণ কিছু বলার না কারণ মিডিয়ার জন্যই রেখেছিল সবাই যে জমায়েতটা আমরা দেখছি উপস্থিত দেখছি এতে সুস্পষ্ট হচ্ছে যে ভিক্টরের জয় সুনিশ্চিত ভিক্টরের জয় সুনিশ্চিত আমরা ভিক্টরের ভিক্টরি দিতে পারবো চাকরির মানুষ এটি আমার বিশ্বাস আছে কারণ যারা ভিক্টরের প্রতিদ্বন্দ্বী সেই টিএমসি যারা চুরের দালাল তাদের জন্য একটা যদি ভোট না হয় এটা আজকে আমাদের এই সভা থেকে শপথ নিতে হবে কারণ দেশ রাজ্য টাকার যে অবস্থা যেভাবে চুরি কামানি হচ্ছে যেভাবে বেকার ছেলেদের নিয়ে একটাও ভোট কিন্তু টিএমসিকে দেওয়া যাবে না এই শপথটা আমাদের নিতে হবে তার পাশাপাশি বিজেপি যে বিজেপি ধর্মের নামে মানুষের মধ্যে হিন্দু মুসলিমের মধ্যে ভেদাভেদ করার চেষ্টা করছে সেই দল যারা আজকে যে ভারতবর্ষ আছে আমাদের হিন্দু মুসলিমের ভারতবর্ষ বিভেদ সৃষ্টি করে তারা ভোট করে তারা গদি দখল করতে চাইছে দিল্লি সেই বিজেপির বিরুদ্ধে যারা আছেন আমি বলবো বিশেষ করে যারা হিন্দু ভাই বোন আছে তাদেরকে বলবো একটু ভাবুন নিজেকে প্রশ্ন করুন কেন এ ঘটনা যখন দেশটা স্বাধীন হয়েছিল সেই আত্মকরা চৌধুরী থেকে হিন্দু মুসলিম সবাই ভাই ভাই হাতে মিলে দেশটাকে স্বাধীন করছিল
কংগ্রেস জোট এই ভিক্টোরি করতে হবে। ভিক্টোরি আমরা করে দিয়ে আমরা পাকুড়া এয়ারপোর্ট থেকে এয়ারপোর্টে পাঠাবো এই সকল খেলে আমরা দীর্ঘ বক্তব্য না কি করছেন এই বক্তব্য সফলিত হবে আমাদের আপনাদের বক্তব্য রাখবেন এআইসিসি মিডিয়া কমিটির अंशुमान साहब। আমি ওনাকে अंशुमान সাহেবকে মন্ত্রীর সামনে হাজির হতে हरदिल अजीज महबूब नेता कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गरी साहब का चकुलिया रायगंज की धरती पर क्रांतिकारी इस्तकबाल है, स्वागत है। मेरे भाई अली इमरान रंज विक्टर, भाइयों मैं 2 मिनट आपसे गुफ्तगू करने आया हूं। इमरान प्रताप गरी साहब हमारे बीच हैं, आप सब उनको सुनना चाहते हैं। इमरान प्रताप गरी साहब कल बाड़मेर से अहमदाबाद तकरीबन 8 घंटे रोड का सफर तय कर वहां से दिल्ली, दिल्ली से बागडोगरा, बागडोगरा से किशनगंज करते हुए आपके बीच आए हैं रायगंज। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से इमरान भाई का इस्तकबाल करें और ये अली इमरान रंज के लिए इमरान प्रताप गरी की मोहब्बत है। जो 5 बजे आज प्रचार खत्म होना है उससे पहले पहले वो रायगंज की धरती पे हाजिर है। उन्होंने कहा था मैं अपने भाई के लिए आऊंगा और वो आए। मेरे भाइयों, रायगंज में जो चुनाव है वो चुनाव 2 भाजपा के नेता बनाम आपका बेटा है, ये याद रखना। अली इमरान रंज न सिर्फ चकुलिया का विधायक था, न सिर्फ रायगंज का प्रतिनिधित्व करेगा, अली इमरान रंज आपका बेटा है। वहीं दूसरी तरफ चाहे भाजपा हो या तृणमूल, दोनों तरफ भाजपा वाले हैं, ये याद रखना। वो आएंगे आपका वोट मांगने, वो आएंगे आपसे बड़ी बड़ी बातें करने, लेकिन ये याद रखना साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, महिलाओं, माताओं, बुजुर्गों, कि ये लड़ाई जमहूरियत बचाने की लड़ाई है, राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने की लड़ाई है, इमरान प्रताप गरी के हाथों को मजबूत करने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा कि आप कांग्रेस का साथ देंगे, आप भाजपा का साथ नहीं देंगे, क्योंकि भाजपा और तृणमूल दोनों को दिया गया आपका वोट नरेंद्र मोदी को जाएगा, ये याद रखना। क्योंकि जो तृणमूल का उम्मीदवार है वो भाजपा का विधायक है, ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। मेरे साथियों, आपको इमरान प्रताप गरी साहब को सुनना है, लेकिन मुझे ये भरोसा दिलाओ, ये यकीन दिलाओ कि मेरे भाई अली इमरान रंज विक्टर को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताकर भेजोगे। और ना सिर्फ चकुलिया, ना सिर्फ गोलमोहर, बल्कि रायगंज की एक विधानसभा से भारी बहुमत से जिताओगे। और आज से अगले 3 दिन वोटिंग तक रायगंज का एक बच्चा अली इमरान रंज विक्टर है, क्योंकि अली इमरान रंज विक्टर जब संसद में आपकी आवाज उठाएगा तो वो सिर्फ अली इमरान रंज नहीं बोल रहा होगा, वो सिर्फ विक्टर नहीं बोल रहा होगा, वो सिर्फ कांग्रेस का एक सांसद नहीं बोल रहा होगा, वो रायगंज की एक माताओं बहनों की आवाज उठा रहा होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वोटों से अली इमरान रंज को कामयाब करो। और मैं अपने नेता इमरान प्रताप गरी को एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि भाई आप इतनी शिद्दतों के बाद, इतनी मुश्किलातों के बावजूद यहां रायगंज में आए हैं। ये रायगंज वालों की मोहब्बत है, ये चकुलिया वालों की मोहब्बत है, ये ग्वालपोखर वालों की मोहब्बत है, जो भाई आज आपको यहां पर खींच लाई है। अली इमरान भाई को आप सुने और उसके बाद इमरान प्रताप गरी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया साथियों। ধন্যবাদ। এখন বক্তব্য রাখবেন আপনারা আমার ঘরের ছেলে তরুণ তুর্কি, আমাদের রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের আলী ইমরান রঞ্জ ভিক্টর।
मौजूद सभापति साहब, मंच पे मौजूद मेरा बेटा भी आके यहाँ खड़ा हो गया आप लोग के साथ। मौजूद सभापति साहब, यहाँ पर मौजूद हमारे हाफिज आलम सहरानी साहब, आपके साबिक एमएलए और बंगाल के मिनिस्टर, और अनवारुल हक साहब, और यहाँ पर मौजूद है सीपीआईएम के नेता उत्तम पाल साहब, और यहाँ पर हम सब के हर दिल अजीज जिनको हम सब सुनने के लिए बेताब हैं। और मैं तहे दिल से इमरान प्रतापगढ़ी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इसी मैदान में आकर पिछले 2 महीने पहले कहा था कि मैं आपके बीच में, आप जब पुकारेंगे मैं आऊंगा, और आज उन्होंने अपनी जुबान को रखते हुए आज इतनी दूर से सफर तय करते हुए पाकिस्तान के एक किनारे में, हिंदुस्तान के कोने में, पाकिस्तान के बॉर्डर पर वो सभा कर रहे थे, और वहां से दिल्ली से बागडोगरा होते हुए आज चकलिया की सरजमीन पर आकर उन्होंने अपनी जुबान रखते हुए आप सबके बीच में आकर हमारे साथ शामिल होकर ये साबित किया है कि इमरान प्रतापगढ़ी जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मैं हम सब की तरफ से, आप सब की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आप लोगों के सामने ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोग चकलिया के तमाम बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माँ और बहन, अक्सर मुझे आप लोग अपनी गलियों में, अपने गांव में, अपनी बस्ती में, अपने चौक चौराहे पर मुझे सुनते रहते हैं। मेरी तकरीर तो आप लोग जब चाहे सुन सकते हैं, लेकिन आज ये मंच इसलिए साजा गया है कि आज इस मंच से आप लोग ये अहद करके जाएं कि आज आपका विक्टर जो आपके बीच में, आपकी गलियों में, आपकी बस्तियों में अपनी तकरीर रखता था, आज उस विक्टर को आप लोग दुआएं देकर इस मुकाम पर पहुंचाएं कि आपकी आवाज बन के विक्टर दिल्ली की संसद में गूंजेगा। क्या ये होगा? हाँ बहिला होगे। यही बात कहने के साथ साथ मैं आप लोगों को सिर्फ एक चंद बातें बताना चाहता हूं कि आज कुछ लोग सियासत में ये कहते हैं कि विक्टर बच्चा है, कोई कहता है विक्टर का नाक दबाओगे तो दूध निकलेगा। तो मैं उनके इस बात को तस्लीम करते हुए, बड़ी इज्जत से उनकी बात को मानते हुए मैं कहना चाहता हूं कि मैं उनके उम्र के लिहाज में मैं उनके सामने बच्चा जरूर हो सकता हूं, लेकिन सियासत में आज मैं आप लोगों के सामने ये बताना चाहता हूं कि आज का बच्चा ही कल का बाप होता है, ये बात याद रखना। और आज मैं सियासत में जो मुझे बच्चा समझते हैं, उनके सामने आप लोगों की दुआओं ने, मोहब्बत ने मुझे बाप बना के सामने खड़ा कर दिया है। और इसका सबूत है कि हमारे स्टेट की मुख्यमंत्री, हम लोगों ने पहले भी देखा है कि हमारे मगरबी बंगाल में मुख्यमंत्री सभा करने आया करते थे। जब बाएं महाज की हुकूमत थी तब ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, ये लोग भी यहाँ पर विधानसभा में, लोकसभा में चुनाव करने आते थे। 2 सभा होता था, एक इस्लामपुर सब डिवीजन में और एक रायगंज सब डिवीजन में। कभी कोई चीफ मिनिस्टर हर विधानसभा में उतर के फोटो सभा नहीं करता था। अब ये ममता बनर्जी यहां आके बोलती है कि विक्टर को वोट देने से बीजेपी जीत जाएगा। तो मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, विक्टर को कहा जा रहा है कि ये वोट कटुआ है, वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है। तो वोट कौन काटता है? जिसका कुछ नहीं होता है वही ना वोट काटता है। तो सवाल है कि रायगंज लोकसभा में कभी भी क्या तृणमूल का एमपी बना है? कभी सुने हैं कि तृणमूल का एमपी रायगंज में था? यहां पर हमेशा कांग्रेस का एमपी रहा या सीपीआईएम का एमपी रहा। यहां पे कभी तृणमूल का एमपी नहीं था। तो आज जो तृणमूल का एमपी को बीजेपी से लाके खड़ा किया है, तो वोट कटुआ कौन है? वोट कटुआ कौन है? ये ममता बनर्जी है वोट कटुआ, जो वोट काटने के लिए
वो आज इस्लामपुर में सभा कर रही है, चकलिया में कर रही है, करंदगी में कर रही है, रायगंज में पद यात्रा कर रही है। क्यों? जहां पर माइनॉरिटी का तादाद ज्यादा है, जहां अकलियत के लोग ज्यादा हैं, उसी जगह पर जाकर वो वोट खराब करने का काम कर रही है, ताकि मुसलमान का वोट बढ़ जाए और बीजेपी का रास्ता साफ हो जाए। तो इसीलिए आप लोगों से मेरा ये अपील है कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, आप लोग अपना फैसला खुद लें। आपका घर का बच्चा, आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भाई, आपका साथी आपके बीच में पहली बार देश आजाद होने के बाद इन 76 सालों में पहला मौका है कि आपके यहां से कोई एमपी का उम्मीदवार खड़ा हुआ है नेशनल कांग्रेस पार्टी से। ये आप सबके लिए एक मौका है कि अगर ये एमपी आप अपने घर में बना के लाते हैं तो आने वाले वक्त में आपकी तरक्की के लिए आपके ये आवाज उठाने वाला आपका घर का बच्चा होगा, जो आपकी दर्द को, आपकी तकलीफ को समझेगा, आपकी जुबान को समझेगा। मोर मां बहिला बुझवा पाछे से मैं तुमसारे घरेर छुआ, तुमसार भाषा बोलছি, तुमसार भाषा बुझছি। কাল अगर कोई भी ओसे बोलबो तो तोर देसी भाषा बुझवा पाम, तोर बांग्ला भाषा बुझवा पाम, हिंदीओ बुझवा पाम, उर्दू बुझवा पाम। मोर लिखे उसवार्तने तो कोई भाषा सीखे उसवानी होबे, ती घरेर भाषा बोलबो तोर बेटा भतीजा बुझे लेबे। এটা বুঝতে হবে। আর আজ मोर माँ बहन लाख में बोलवा चाची, राहुल गांधी जे बोली है 5टा न्याय बात, ये 5टा न्याय, যুব न्याय, किसान जন্য একটা न्याय, শ্রমিকের জন্য একটা न्याय, महिलाদের জন্য न्याय, অংশীদারি न्याय, 5 न्याय की बात की गई है। माँ बहन लाग अभी टीएमसी ला धमकी दी जाए कि वोट नहीं दीबो तो लस्सी भंडार बंद हो जावे, तोर ईडा बंद करे दूं, तोर उडा बंद करे दूं, सबला बंद करे दूं। तो मोर माँ बहन ला मोर बात पर भरोसा करे, सुने ले। ईडा वो दिल्लीर वोट, ईडा वोट दिले न पंचायत कोई फर्क पड़बे, न समिति, न जिला, न मुख्यमंत्री बदलवा पाबो। ईडा दिल्ली सरकार होबे, और दिल्ली सरकार होल तो राहुल गांधी जे बात बोली है महिला न्याय तने कि अगर दिल्ली राहुल गांधी इंडिया जोटेर सरकार होल तो मोर हर एकटा माँ बहनों एक सालत 1 लाख टका करे दिया जाबे, और 8,333 टका महीना पाबो। वार साथे जरा आशा कर्मी, आईसीडीएस वर्कर, जरा मिड डे मीलत काम कर जे तनखा छे उडा तनखा जे दिल्लीर पैसा छे उडा डबल हो जाबे, तो तनखा बढ़े जाबे। इना फायदार बात कराल गया। किसान के लिए बोला गया है कि एमएसपी का कानून बनाकर किसानों को उसका फसल का कीमत दिया जाएगा। पढ़े लिखे नौजवानों को 30 लाख नौकरी दी जाएगी, रोजगार के लिए इंतजाम किया जाएगा। ये सारी बातें आज इसमें कही गई, क्योंकि वक्त की कमी है। आज आखिरी प्रचार है, इसलिए मैं अपनी तकरीर को लंबा ना करते हुए मैं सकल भाई बंधुদের কাছে শুধু এটাই বলতে চাই कि आज के माननीय मुख्यमंत्री এখানে এসে আমাকে ছোকরা বলছে। এই ভিক্টর হচ্ছে ছোকরা, ভিক্টর নাকি ঝগড়া করে, লড়াই করে। আমি স্বীকার করে নিচ্ছি আমি লড়াই করি, কিন্তু লড়াইটা কার জন্য করি? আমি লড়াই করি আমার মা বোনের জন্য, আমার এলাকার মানুষের জন্য, যাদের অধিকার যারা কারিয়ে নেয় তাদের জন্য লড়াই করি। আমি লড়াই করি যখন সাধারণ মানুষদের উপরে কোনো শাসক দলের পক্ষ থেকে অত্যাচার হয়, পুলিশ প্রশাসনকে লেলিয়ে দিয়ে তাদের উপরে বেআইনি ভাবে প্রভাব আঘাত করা হয়, তখন আমি লড়াই করি। আর আমি স্বীকার করছি যে এই লড়াইটা আমি সারা জীবন করে যেতে চাইছি। আর আপনাদের কাছ থেকে দোয়া চাইছি, আশীর্বাদ চাইছি যে আপনারা আমাকে দোয়া করুন, আশীর্বাদ করুন যে আমি যেভাবে লড়াই করে এসেছি যাতে ভবিষ্যতেও আপনাদের জন্য সেভাবে আমি লড়াই করতে পারি, আগামী দিনেও আপনাদের হয় কথা বলতে পারি, আগামী দিনেও আপনাদের জন্য লড়াই করতে পারি। এই শক্তি যাতে আল্লাহ তাআলা আমাকে দেয়, সেই দোয়াটা আপনারা করবেন। সবাইকে বলবো এই দোয়া করুন। এই যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ছোকরা বললো, না গুন্ডা বললো, না মস্তান বললো, তাতে ভিক্টরের কিছু যায় আসে না, কিন্তু আপনাদের
আছে আগামী 26 তারিখ নিজের মূল্যবান ভোট আপনারা 1 নম্বর বোতাম টিপে আপনার ঘরের ছেলের কাছের ছেলেকে আপনার ভিক্টরকে আপনারা 1 নম্বর বোতাম টিপে হাত চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এবার আপনারা আমাদের প্রধান বক্তা মাননীয় ইমরান প্রতাপগড়ি সাহেব যার শায়রি শোনার জন্য আপনারা সবাই এখানে আছেন, তার জন্য ওনাকে আমি বলবো কি এরপরে উনি আসবেন, আমাদের সভাপতি সাহেব ওনাকে ডাকছেন, আপনারা অপেক্ষা করুন। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद चाकुलिया और उसके आसपास के तमाम नौजवान साथी माएं बहनें यहाँ पे मौजूद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहित सिंह गुप्ता जी, हाफिज आलम सहरानी साहब, एक्स मिनिस्टर अनवारुल हक साहब, उत्तम पाल साहब CPIM लीडर, और आपका चहेता, आपका अपना प्रत्याशी इमरान अली इमरान रम्ज विक्टर। यही वो ग्राउंड है, शायद इस तरह से स्टेज लगा था तकरीबन 2 महीने पहले जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा इधर से गुजर रही थी। क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था और मैं उस क्रिकेट टूर्नामेंट में आया था। तमाम नौजवान साथियों ने मुझसे कहा था कि इमरान साहब अच्छा हो अगर इमरान विक्टर को पार्लियामेंट का टिकट मिले। तो मैंने बस इतना कहा था कि आप भरोसा रखिए, ऊपर वाले ने चाहा तो हो जाएगा। और उसके बाद जो लड़ाई हम लड़ सकते थे वो लड़ाई हमने अपनी पार्टी के अंदर लड़ी इमरान के लिए। और इमरान के लिए लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी के इमरान का नाम मेरे नाम जैसा है, मैं भी इमरान हूं, ये भी इमरान है। मैंने इमरान के लिए लड़ाई इसलिए लड़ी क्योंकि इमरान इस चीज को डिजर्व करते हैं। इमरान हकदार है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के। इमरान का हक है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर दिल्ली पहुंचे, क्योंकि उन्होंने बतौर MLA आपकी नुमाइंदगी की है और आपके लिए काम किया है, आपके लिए कुर्बानी दी है, आपके लिए लड़ाई लड़ी है। इस बात की गवाह है, यहां बड़ी तादाद में बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत भीड़ है। मुझे पता चला है कि प्रशासन के लोग बहुत सारे लोगों को आने भी नहीं दे रहे हैं। मैं प्रशासन के लोगों से गुजारिश करूंगा कि आने दीजिए। लोग लोकतंत्र में, जमहूरियत में जिसे चुनना चाहे, जिसे सुनना चाहे, उसे रोकना नहीं चाहिए। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मुल्क लोकसभा इलेक्शन के मुहाने पर खड़ा है। 26 अप्रैल को आपको घरों से निकलना है। मेरे अपनों, मेरी माँ, मेरी बहनें खड़ी हैं जो कह रही हैं कि हमें बहुमत दो, हम संविधान बदल देंगे। अनंत हेगड़े हो, लल्लू सिंह हो, अरुण गोविल हो, ज्योति मिर्धा हो, भाजपा का हर नेता क्या कह रहा है कि हमें बहुमत दो, हम संविधान बदलेंगे। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के उसूल है, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की ख्वाबों की बुनियाद है, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के सपने शामिल हैं, ये उसे बदलना चाहते हैं। लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ MLA MP चुनने की होती तो मैं आपके बीच में नहीं आता। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। और सोचो ऐसे में आपका बेटा, आपका भाई
दीदी आई थी छोकरा बोल के गई, इसको तो खुश होना चाहिए यार इमरान, ये तो अच्छी बात है। अगर सोचो इमरान विक्टर जो 44 साल के हैं उनको छोकरा बोल रही है, तो मैं तो 36 साल का हूं, मुझे क्या बोलेंगी वो? और कितना अच्छा होगा सोचो ना कि एक तरफ एक इमरान राज्यसभा में बैठा होगा, दूसरा इमरान लोकसभा में बैठा होगा। ये लोकसभा में आपके मुद्दे पर आवाज उठाएगा और मैं राज्यसभा में आपके मुद्दे पर आवाज उठाऊंगा। देखिए इस नाम में कुछ बात तो है, दुनिया भर में देख लीजिए, जब भी उठ खड़े हुए तो हंगामा तो खड़ा कर दिया इस नाम वालों ने। ये तो किया है, ये तो किया है साथियों। तो इस बार मैंने तो सुना है कि यहाँ कौन टीएमसी है कौन बीजेपी है फैसला ही नहीं हो पा रहा। टीएमसी वाला बीजेपी से, बीजेपी वाला टीएमसी से, गंगाधर ही शक्तिमान है, इसलिए किसी धोखे में मत आइए। और मैं पूरी रायगंज, सिर्फ चाकुलिया नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो पूरे रायगंज में जाएगा। मैं जानता हूं कि कितना लड़ करके, कितना संघर्ष करके इमरान विक्टर का टिकट हुआ है। हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है। दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। हमने वो सब कर लिया है, हमने कैंडिडेट बना करके इमरान विक्टर को आपके सामने उतार दिया है। जब पूरी दुनिया चाह रही थी कि हम यहाँ कैंपेन करने ना आए, तो मैंने रात में 8 घंटे का बाई रोड सफर तय किया। मैं राजस्थान बाड़मेर, बिल्कुल बॉर्डर से 7 किलोमीटर दूर सभा कर रहा था। वहां से 8 घंटे का सफर किया। पिछली 6-7 रातों से सोया नहीं हूं, लेकिन मुझे यहां किया गया अपना वादा याद था। मैंने रायगंज वालों से वादा किया था कि मैं दूंगा, तो मेरा फर्ज सिर्फ टिकट दिलवा के खत्म नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि मैं अपने भाइयों के बीच में जाऊंगा, अपना दामन फैलाऊंगा इमरान के लिए, और लोगों से ये कहूंगा कि इस बार लड़ाई बहुत बड़ी। इमरान विक्टर को दिया गया आपका वोट सिर्फ इमरान विक्टर को नहीं मिलेगा, बल्कि मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, जो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा लगाते हुए 4000 किलोमीटर पैदल चला। किस लिए? नफरत कम हो सके। नफरत का शिकार कौन है? आप हो, हम हैं। कभी ट्रेन में, कभी किसी चौराहे पर, कौन सी भीड़, कौन सा कांस्टेबल, कौन सी नफरत आपका शिकार कर ले, कोई भरोसा है इस दौर में? नहीं है ना। तो उस नफरत के खात्मे के लिए राहुल गांधी कितना किलोमीटर चले? पहले 4000 किलोमीटर पैदल चले, फिर 6700 किलोमीटर भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चले। चाकुलिया वालों, इस एक बात पर तो ईमान रखते होगे ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। रखते हो ना ईमान? हम सब रखते हैं, हम भी रखते हैं, आप भी रखते हो, आप भी रखते हो। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए, यह हमारे बुजुर्गों का कौल है। मैंने देखा है राहुल गांधी के पांव के छाले। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। जब वो पैदल चल रहे थे तो मुझसे मीडिया ने कहा, इमरान साहब आप क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं तो शायर हूं, मैं तो राहुल को चलते हुए देख रहा हूं और एक शेर पढ़ रहा हूं कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। तो चाकुलिया वालों, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए, इस बात पर ईमान है ना? अगर है तो मैंने देखा है राहुल के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी का बहता हुआ पसीना। वो पसीना अभी सूखा नहीं है। मैं राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं, और वो मजदूरी है
इमरान विक्टर को जिता करके पार्लियामेंट भेज दो। राहुल गांधी की मजबूरी यही है। आप पार्लियामेंट भेज दो। सरकार बनने जा रही है। जो कांग्रेस पार्टी के न्याय है उसके बारे में इमरान भाई ने बताया। उसमें जो सबसे प्यारी बात है, क्योंकि वो जो मैनिफेस्टो बना है, मैं उसका मेंबर हूं उस कमेटी का, सबसे कम उम्र का मेंबर। उसमें जानते हैं कौन है? पी चिदम्बरम है, शशि थरूर है, जयराम रमेश है, गौरव गोगोई है, प्रवीण चक्रवर्ती है। और उसमें आपकी नुमाइंदगी करने के लिए 36 साल का एक नौजवान भी है जिसका नाम इमरान प्रतापगढ़ी है। हमने बनाया है वो मैनिफेस्टो। उसमें क्या है कि नौजवानों को 30 लाख नौकरी, और जिनके पास डिप्लोमा है 25 साल तक के नौजवान, उनको 1 लाख रुपए का बेरोजगारी भत्ता। और यहां माएं बहनें बैठी हैं। पार्टी क्या कह रही है? कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट आपके अकाउंट में सरकार बनते ही हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए डायरेक्ट अकाउंट में दिया जाएगा। कोई बिचौलिए नहीं होंगे। तो अब आपका रोल बहुत बड़ा हो जाता है। आप चाह लेना तो घर वाले की हिम्मत थोड़ी है कि किसी और को वोट दे करके आ जाए, फूल छाप को, कमल छाप को। अच्छा, उधर भी दोनों फूल हैं, एक कमल छाप है, छोटा वाला फूल है, बड़ा वाला फूल है। तो फूल नहीं बनना है। 1 अप्रैल बीत चुका है, फूल नहीं बनना है, अप्रैल फूल नहीं बनना है। अब तो पंजा का शिकंजा कसेगा। इसलिए माओ बहनों में आपसे खासतौर से गुजारिश कर रहा हूं, घर में अगर घर वाले या घर का कोई और सदस्य अगर कोई और झंडा उठाए हुए हो ना, तो आज लौट के जाना, तो उनसे कहना कि देखो हमारे 1 लाख का मामला है, सरकार बनते ही 1 लाख हमारे अकाउंट में आएगा, हम तुमको किसी और को वोट नहीं देने देंगे। अगर किसी और का झंडा उठाओगे तो आज से घर में खाना पीना बंद, जाओ वहीं खाओ। आप जिस दिन घर वालों को ये कह दोगे तो फिर किसकी मजाल है कि जाकर के किसी और को वोट दे सके? फिर तो इमरान विक्टर को लोगों को वोट देना ही पड़ेगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, बहुत दूर से भाई इधर आइए। मेरी इमरान से बहुत कम मुलाकातें हैं, 1-2 मुलाकातें, लेकिन पता नहीं क्यों इस भाई से बड़ी मोहब्बत है मुझे, बड़ी मोहब्बत है। क्योंकि ये आदमी आपके मुद्दों पर लड़ता है तो ये नहीं देखता कि सरकार से लड़ रहा है या किसी जागीरदार से लड़ रहा है, ये लड़ता है आपके लिए। और जिस इंसान के अंदर मुझे मेरे जैसा तेवर नजर आता है उससे मुझे मोहब्बत होती है। मैं इस भाई से मोहब्बत करता हूं। मैं दिल्ली की पार्लियामेंट में अकेला पड़ जाता हूं कभी कभी। मैं चाहता हूं कि मेरा साथ देने के लिए एक और बहादुर इंसान को चुन करके पार्लियामेंट भेजो। मैं रायगंज के एक आवाम से, मुझसे मोहब्बत करने वाले से, राहुल गांधी पे यकीन करने वाले से, लेफ्ट के तमाम साथियों से, संविधान की बचाव की बात करने वाले बाबा साहब के अनुयायियों से, सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि भाजपा से टीएमसी में आया हुआ तुम्हारे मुद्दों पे नहीं लड़ सकता है, जमहूरियत बचाने के लिए नहीं लड़ सकता है। अगर कोई तुम्हारे लिए लड़ सकता है तो तुम्हारा बेटा इमरान विक्टर लड़ सकता है। इसको जिताओ, इसको पार्लियामेंट पहुंचाओ। क्योंकि एक बात बहुत संजीदगी से सुनना, अगर इस बार चूक गए ना तो आने वाली कई सदियों तक शायद यहां से कोई दूसरा इमरान टिकट लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। याद रखना इसका। पार्टी ने भी बड़ा रिस्क लिया है, बड़ा भरोसा किया है। बहुत सारे लोगों खुश नहीं है लोग, कई लोगों के माथे पे बल पड़े हुए हैं। कम कहूंगा, ज्यादा समझना। हर साजिश को नाकाम करना है। मैं जानता हूं कि मैं यहां कैसे पहुंचा हूं। मुझे रोकने की कितनी साजिशें थी, लेकिन मैंने कहा था ये अंशुमान बैठा है, यहाँ पे उमर भाई बैठे हैं, जानते हैं। मैंने कहा इमरान विक्टर के लिए अगर मुझे पैदल भी जाना पड़ेगा प्रचार करने के लिए तो मैं पहुंचूंगा। क्योंकि मैंने जबान दी है और मर्द की जबान ही सब कुछ होती है। अगर वो पूरा नहीं कर सके तो फिर क्या फायदा जिंदगी का। तो मैं आपसे वादा करता हूं मेरे भाई, वक्त कम है, प्रचार बंद होना है, शायरी भी सुनाना है। भाई साहब नीचे से कह रहे हैं, नहीं सुनाऊंगा तो कैसे काम चलेगा। मैं जानता हूं सुनाना ही पड़ेगा। अच्छा, वो भी सुनाना। कहां सोया है चौकीदार
4 जून को जब रिजल्ट आए ना, तो फिर हम दोनों पार्लियामेंट में बैठे, सरकार हो और उधर नरेंद्र मोदी जी बैठे हो अपोजिशन में, तब मैं उनसे सवाल पूछूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला, इतनी कमजोर ताली से काम नहीं चलेगा। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। आज से इस इलेक्शन को इमरान सिकंदर बन के लड़ो, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़ो। इस इलेक्शन को देखते हैं कौन भाई करार हराएगा। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब जो लाइन है उससे एक हाथ को कसम है, यहां से वहां तक, जहां तक नजर जा रही है अवाम ही अवाम है। आज की रात भाजपा और टीएमसी के दोनों कैंडिडेटों को नींद नहीं आएगी, मुझे ये बात पता है। चाय रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये जो सीट पर टीएमसी और बीजेपी की दूरा कुश्ती चल रही है ना, उसमें नहीं फंसना है, बटना नहीं है, तकसीम नहीं होना है। अगर बट गए, अगर तकसीम हो गए, अगर किसी झांसे में आ गए, तो मेरे भाई आने वाले कई दशक, कई सदियां पछताओगे, इस बात को याद रखना। मैं इमरान भाई के लिए आखिर में, मुझे पता है आप पिछले 5-6 घंटे से बैठे हैं, धूप बहुत तेज है, मैं भी पसीने पसीने हूं, आप भी पसीने पसीने हैं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो मोहब्बत तो निभानी पड़ेगी। मैं निभाने के लिए कई 100 किलोमीटर से, मतलब हजारों किलोमीटर से आया हूं। तो आप तो यहीं रहते हो, आज से अहद कर लो, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको सोशल मीडिया पे फोन करके, व्हाट्सएप पे मनाओ, उनको समझाओ कि सिर्फ आप एकजुट हो गए ना, तो इमरान विक्टर को कोई नहीं हरा सकता। दिल्ली में इस बात की चर्चा है, चर्चा है दिल्ली में कि अगर सिर्फ आप एकजुट हो जाए तो इमरान विक्टर को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन आपसे मुझे 2 शिकायत भी है। आप सुबह चाय की दुकान में बैठते हो तो कलकत्ता में सरकार बदलते हो, और फिर शाम में बैठते हो तो दिल्ली में। बिरयानी खाते खाते मुख्यमंत्री बदल देते हो, और दाल चावल खाते खाते प्रधानमंत्री। फिर जिस दिन वोट देना होता है, आपको लगता है कि यार इमरान विक्टर तो जीत रहा है, कौन जाए धूप में लाइन में लगने, कौन परेशान हो। नहीं नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझो। राजस्थान में एक नेता है सीपी जोशी, हमारी ही पार्टी के, चीफ मिनिस्टर बनने की रेस में थे, एक वोट से एमएलए का इलेक्शन हार गए, न एमएलए बन पाए तो चीफ मिनिस्टर क्या बनते। तो एक एक वोट की अहमियत ये होती है। चाकुलिया वालों, मेरी इस बात को जहन नशीन कर लो, अपने दिलों में बिठा के घर जाओ। तुम्हारे हाथों में जो ईवीएम का बटन दबाने की ताकत है एक वोट की, वो सिर्फ एक वोट नहीं है। ये उसी तरह है जिस तरह से अबाबीलों के पंजे में एक कंकर था, और उन्होंने जब उसे जुल्म के खिलाफ गिराया तो अब्राहा कहां चला गया दुनिया को पता भी नहीं चला। वो उस ताकत का इस्तेमाल करो, अपने घरों के बाहर निकलो। 26 तारीख को
माँ को, भाई को, बहन को, बेटे को, परिवार को, रिश्तेदार को, सबको लेकर के इमरान के लिए घर से बाहर निकलिए। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, खुदा रहम अदालत से न मांग, जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। हक है ये बात कि इमरान विक्टर जीते और पार्लियामेंट में पहुंचे। सोचिए, एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी, एक तरफ इमरान विक्टर। नजारा अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा ना? तो फिर मुझसे वादा करो, अपना एक एक हाथ उठा करके, उठाओ अपना एक एक हाथ, मुझसे वादा करो कि मेरे आने को जाया नहीं होने दोगे और इमरान विक्टर को जिताओगे। जिताओगे ना? जिताओगे ना? जिताओगे ना? इमरान विक्टर को सांसद बनाओगे ना? बना के दिल्ली भेजोगे ना? किसी के झांसे में नहीं आओगे ना? एक एक वोट हाथ के पंजे पर दोगे ना? बहुत शुक्रिया चाकुलिया वालों। एक आखिरी वादा आपसे कि आप इमरान विक्टर को जिताइए, इन्हें पार्लियामेंट भेजिए। 4 जून को रिजल्ट आएगा। मैं हिंदुस्तान के पता नहीं किस शहर में रहूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आप इमरान विक्टर को जिता करके पार्लियामेंट भेज दीजिए। उसके बाद इसी मैदान में एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हेलीकॉप्टर उतारूंगा और आपको खूब सारी शायरी सुनाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आज जाना पड़ेगा क्योंकि आचार संहिता है, हेलीकॉप्टर उड़ना है एक टाइम के बाद।